Hello everyone, my dear students, I welcome you all in today's live session. Today we are going to talk about the northern plains of physical features of India, that is chapter number 2nd of Geography class 9th. Okay, physical features of India we are talking about, and its first topic, that was the first physiographic division. The northern are the Himalayan mountain has been completed so far. Today we will talk about the northern plain. Okay, the second physiographic division of India, the northern plains. So let's have a look over here. Northern plains has been formed by the interplay of three major river systems, namely Indus, Ganga, and Brahmaputra. Okay, that means northern plain is formed due to the rivers Indus river, Ganga river, and the Brahmaputra river along with their tributaries. Okay, along with their tributaries. Okay, tributaries means you can write over there tributary. I will tell you in the map over here. See here, tributaries are the tributaries tributaries are the feeding rivers to the main river. Okay, to the main river. Like ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या हुआ, ये फीडिंग रिवर्स होती हैं. जैसे ये यमुना आपकी फ्लो हो रही है ना, यमुना, ये गंगा है, तो गंगा मेन रिवर है, यमुना इसकी ट्रिब्यूटरी है. यमुना की बात करें हम लोग तो ये चंबल इनकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है. ओके, चंबल इनकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है. सेम वे में गंगा यहाँ से मेन रिवर सिस्टम है, गंगा यहाँ से फ्लो हो रही है, ये घाघरा इसकी ट्रिब्यूटरी है, गंडक इनकी ट्रिब्यूटरी है, कोसी भी इनकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है. ट्रिब्यूटरी इनकी फीडिंग रिवर्स होती हैं, सपोर्टिंग रिवर्स होती हैं. ओके, ट्रिब्यूटरी मीन्स सपोर्टिंग रिवर्स. इन हिंदी दे आर कॉल्ड द सहायक. ओके, सहायक नदियाँ. क्लियर. सो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज. क्लियर. Tributaries are the feeding rivers to the main river. Okay, so the northern plain is formed due to three major river systems called Indus river system, Ganga river system, and Brahmaputra river system. One more thing, students, I want to tell you all. A river system refers to the main river and its tributaries of a particular area. Okay, what is river system? River system refers to the main river along with its tributaries. Okay, along with its tributaries. Okay, along with tributaries. Clear. Of a particular area. Okay, so two things I told you. What is the sense of tributaries? Okay, so tributaries are the supporting river to the main river, and the river system refers to the main river along with its tributaries of an particular area. Okay, so northern plain consists of three major river system, okay, along with their tributaries. This plain is formed of alluvial soil. Okay, and this complete plain is formed of alluvial soil. Now the deposition of alluvium in vast basin lying at the foothill of the Himalayas over millions of years formed this fertile plain. Okay,
ये बताया गया है यहाँ पे हिमालय की फुटहिल में जो ये डिपोजिशन है एलुवियल सॉइल का, ठीक है, इससे ही यहाँ का ये फर्टाइल प्लेन बना हुआ है। ओके, एक बार मैं फिर से आपको मैप पर बताऊँ। देखिए, एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज हियर। ओके, this is the extension of northern plain. So this is formed by three major river system. One is the Indus river system, okay, this area, and second one is the Ganga river system, this area, and third one is the Brahmaputra river system, this area. Okay, so this as a whole called as the northern plain. इनको हम completely क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। ओके, इनको क्या बोलते हैं हम? नॉर्दर्न प्लेन। बात समझ में आ गई? यहाँ पे तीन मेजर रिवर सिस्टम कौन सी हो गई? इंदस, ओके, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, देन आफ्टर दिस गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एंड लास्ट वन ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. So all these three river system combinedly make the northern plain of India. Okay, and when they came from here to the planar area, okay, and you may see here in the map all are coming to the plains. Okay, so they carry the deposits with them. Okay, deposits with them, and due to the deposition in this foothill, okay, foothill means the area lying nearby the mountains. Okay, they have deposited this here, and due to this in the long period of time this northern plain has been formed. एक बार इसको हिंदी में आप समझ लीजिए। देखिए, इनका मतलब ये हुआ जितनी भी रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, ये हिमालय से जो भी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, ये जब मीन्स फ्लो करती हैं तो अपने साथ में बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स को कैरी करती हैं और उन्हें ले आकर के इस फुटहिल में, फुटहिल मीन्स द एरिया लाइंग टू द नियर बाय द फुट ऑफ द माउंटेन्स, यहाँ पर इसको डिपॉजिट करती हैं और ड्यू टू द डिपोजिशन this alluvial plain that we call the northern plain has been formed. Okay, and it is fertile in nature. Okay, next one, deposition of alluvium in vast basin lying at the foothill of the Himalaya over millions of years formed this fertile plain. ये मैंने आपको बता दिया, ये डिपोजिशन की वजह से यहाँ का फर्टाइल प्लेन बना हुआ है। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इनकी एरिया कितनी है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 km लॉन्ग एंड 240 to 320 km ब्रॉड इज ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन. ओके, so its length is approximately 2400 km and width is width ranges to 240 to 320 km. Okay, due to its fertility this physiographic division is densely populated. Okay, क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल है तो यहाँ पर क्रॉपिंग इजली हो सकती है, तो यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ना, यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया मिलती है. नाउ with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally productive part of India. देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने पहले ही आपको बताया कि जो सॉइल कवर है यहाँ का, वहाँ पर क्या है, एडिक्वेट वाटर सप्लाई भी है और साथ साथ में फेवरेबल क्लाइमेट भी है ना. यहाँ की नॉर्दर्न प्लेन हैज़ द मॉडरेट टेम्परेचर. ओके, मॉडरेट टेम्परेचर एंड एवरेज रेनफॉल. ओके, एवरेज रेनफॉल, सो इट इज़ बेटर फॉर क्रॉपिंग. ओके, इनकी एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत ही बेटर प्लेस है. यहाँ पे टेम्परेचर भी मॉडरेट है. ओके, मीन्स फेवरेबल क्लाइमेट है और साथ साथ में यहाँ पे जो रेनफॉल है वो भी ठीक ठाक हो जाती है, एवरेज रेनफॉल. ओके, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे आप क्रॉपिंग इजीली कर सकते हो, यानी कि एग्रीकल्चर इसलिए हो सकता है. क्लियर?
नेक्स्ट, द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। ओके, ये चीज़ें मैंने पहले ही आपको बताया। जो रिवर्स हैं वो डिपोजिशनल वर्क में लगी हुई हैं, मीन्स दे कैरी द सेडिमेंट्स एंड फाइन पार्टिकल विद देम एंड डिपोजिट टू द फुटहिल। In the lower course, due to slope, the velocity of the river decreases, with which results in the formation of riverine islands. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये डिपोजिशन की वजह से, ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पे स्लोप कम होने की वजह से जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। ओके, फ्लो ऑफ वाटर ये क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। अब फ्लो ऑफ वाटर कम होने की वजह से जो स्लोप है, स्लोप कम होने की वजह से फ्लो ऑफ वाटर मीन्स स्पीड ऑफ वाटर ये कम हो जाता है। इससे क्या होता है, रिवराइन आइलैंड्स बन रहे होते हैं। क्लियर, रिवराइन आइलैंड्स बन रहे होते हैं। अब रिवराइन आइलैंड्स क्या होते हैं, इनको देखिए। व्हेन अ रिवर फ्लोज देन समटाइम्स इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 पार्ट्स एंड अ एरिया रिमेनिंग बिटवीन देम। ओके, कभी कभी क्या होता है, जब कोई मेन स्ट्रीम बह रही होती है तो क्योंकि स्लोप कम होने की वजह से वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। 2 पार्ट में डिवाइड होगी तो क्या होगा, ये बीच का जो स्पेस है ये मीन्स रिमेनिंग रह जाता है और यहाँ पर कुछ इनहेबिटेंट्स रहने लग जाते हैं। ओके, सो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, रिवराइन आइलैंड। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, रिवराइन आइलैंड्स बोलते हैं, रिवराइन आइलैंड्स। Okay, and the world's largest riverine island is the Majuli Island. Okay, Majuli Island, and it is formed in Brahmaputra River. Okay, Brahmaputra River and in Assam. क्लियर, क्या बताया गया आपको, देखिए रिवराइन आइलैंड वहाँ पे बनता है बच्चों जहाँ पे ग्रेडियंट जिसको हम स्लोप बोलते हैं वो कम हो जाता है। आपको पता है सारी रिवर्स हिमालय से आ रही होती हैं, तो हिमालय कल हम लोगों ने पढ़ा था, हिमालय के बारे में हमने बताया था कि ग्रेटर हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर है, मीन्स 6 किलोमीटर है। अब 6 किलोमीटर ऊपर से कोई रिवर आएगी तो उसका फ्लो तो बहुत तेज़ी से होगा, तो वो अपने साथ में जितने सारे पत्थर हैं, जितने सारे रॉक्स हैं, उनको तोड़ते फोड़ते लेके आती है नीचे, फाइन पार्टिकल्स में चेंज कर देती है। और इन फाइन पार्टिकल्स को ये फुटहिल में ला करके कहाँ पे क्या करते हैं, फुटहिल में ला करके इनको डिपॉजिट कर देते हैं। ओके, इनको फुटहिल में ला करके डिपॉजिट कर देते हैं। अब डिपोजिशन की वजह से क्योंकि यहाँ पे स्लोप कम हो जाता है, आपको पता है ये प्लेन है, प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन मीन्स द हॉरिजेंटल प्लेस हैविंग लो ग्रेडियंट। ओके, यहाँ पे बिल्कुल ग्रेडियंट नहीं है, मीन्स स्लोप नहीं है, तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ वाटर होता है, स्पीड ऑफ वाटर वो बहुत ही कम हो जाता है। तो स्पीड कम होने की वजह से आपको पता है अगर स्पीड कम हो गया तो वाटर ऐसे ऐसे फ्लो करेगा, मीन्स इन द कर्व फॉर्म। क्लियर, water will flow in the curve form. So when it will flow in curve form, then sometimes this the main stream of the river changes into 2 streams. Okay, changes into 2 streams like this, and then this remaining part is known as island. इनको हम island बोलते हैं। स्लोप कम हो जाएगा तो कभी कभी क्या होता है, वाटर वो मेन स्ट्रीम से चेंज होकर के 2 स्ट्रीम में फ्लो होने लगता है और बीच में उसमें कुछ रिमेनिंग स्पेस हो जाते हैं। ठीक है, और ये रिमेनिंग स्पेसेस अगर ये बहुत बड़ा हो गया यहाँ पे, मीन्स लोग रहने लग गए, तो इनको हम फिर आइलैंड्स, आपको पता है आइलैंड की डेफिनेशन क्या होती है, एंड लैंड मास विच इज कवर्ड आर सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। ठीक है, पानी से हर तरफ से घिरा हो लैंड मास हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे। अब ये क्योंकि रिवर से घिरा हुआ है तो इसको हम रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। क्लियर, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। Rivers in their lower course split into numerous channels due to the deposition of slit. ओके, स्लिट के डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, रिवर्स बहुत सारे मीन्स चैनल्स में डिवाइड हो जाते हैं। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। देखिए एक बार मैंने आपको ट्रिब्यूटरी बताया, ट्रिब्यूटरी का सेंस क्या था बच्चों, ट्रिब्यूटरी मीन्स द सपोर्टिंग रिवर और द फीडिंग रिवर आर टू द मेन रिवर। ट्रिब्यूटरी किसको बोलते हैं हम लोग, ट्रिब्यूटरीज आर द सपोर्टिंग रिवर्स टू द मेन रिवर, इनको हम सपोर्टिंग रिवर बोलते हैं और ये फीडिंग रिवर होती हैं। ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटरीज, then distributaries are the rivers which are dividing from the main river.
ये मेन रिवर से अलग हो जा रही होती हैं, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। एंड दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास, ये डेल्टा के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। और वहीं पर अगर हम ट्रिब्यूटरी की बात करें, ट्रिब्यूटरीज आर द सपोर्टिंग रिवर्स टू द मेन रिवर एंड दे हेल्प इन फीडिंग द रिवर्स, ओके। ये रिवर की फीडिंग में हेल्प करती हैं, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, the northern plain is broadly divided into three sections. These, the western part of north plain is referred to as the Punjab plain, okay. अब अगर हम बात करें, yes, so we were talking about the third next point, and it is the northern plain is broadly divided into three major sections. My dear student, this is most important point in the examination. You may be asked that classify the northern plain into the three sections, then your answer will start like this. The western part, the northern plain is referred as the western part of the northern plain is referred as Punjab plain. First division is Punjab plain, okay. पहला कौन सा डिवीजन होगा? पंजाब प्लेन, ओके, फॉर्म्ड बाय द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ओके। इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज से जो भी प्लेन बनता है उसको हम पंजाब प्लेन बोलते हैं। ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन है। देन आफ्टर द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, ओके। यू नो मेनली द इंदस रिवर फ्लोज इन पाकिस्तान, ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द इंदस रिवर फ्लोज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स along its tributaries like Satluj, Jhelum, Chenab, Ravi and etc. Okay. Now the Indus river, Indus and its tributaries, the Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj originate in the Himalayas. The section of this plain is dominated by the Doab. Okay, and Doab means the area having only two rivers. Okay, area having only two rivers is known as Doab. Actually it is an Arabic term, okay, it is an Arabic term Doab, and it consists of two words, to, do and ab, okay. Ab refers to water, okay, ab refers to water and do means two, okay. So the area having two river water is known as Doab. बात समझ में आ गई? दोआब का मतलब क्या है? एक अरेबिक टर्म है ये, दो और आब, आब का मतलब पानी होता है, वाटर, एंड दो मीन्स टू, ओके। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर, द नेम पंजाब हैज़ बीन अराइव्ड फ्रॉम दिस, ओके। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि पंजाब नाम का मतलब क्या है, पंजाब कैसे पड़ा नाम, तो आप इनके बारे में बताएंगे, बिकॉज देयर इज़ द 5 मेजर रिवर फ्लोइंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ओके। वहाँ पे 5 रिवर हैं, कौन कौन सी? अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, दीज आर द 5 रिवर सिस्टम, 5 rivers flowing in that particular area, so it is known by the name Punjab, okay, Punjab. Panj refers to 5, okay, and Ab means water, so the area having 5 river is known as Punjab. Now moving ahead, the plain extends between घग्गर एंड तिस्ता रिवर्स, ओके। देखिए पहला पार्ट कौन सा था? वेस्टर्न पार्ट, जिसको हम पंजाब प्लेन बोलते थे, ओके, पंजाब प्लेन, एंड सेकेंड प्लेन इज़ द गंगा प्लेन, ओके। पंजाब प्लेन वॉज मेनली द मेन रिवर सिस्टम वॉज देयर द इंदस, वहाँ की मेन रिवर सिस्टम कौन थी? इंदस थी, और इसकी ट्रिब्यूटरीज। अब हम बात करेंगे गंगा प्लेन की, सेकेंड वॉज द गंगा प्लेन, एंड दिस एरिया एक्सटेंड बिटवीन द घग्गर रिवर एंड द तिस्ता रिवर, and it is spread over the states of northern India, Haryana, Delhi, UP, Bihar and partly Jharkhand and West Bengal to its east, particularly in Assam lies the Brahmaputra plain, ठीक है। तो सेकंड प्लेन कौन सा हो गया? गंगा प्लेन हो गया। इनका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ पर? हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और साथ साथ में झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल का स्मॉल पार्ट। अब बात करें हम लोग थर्ड पार्ट की, जो नॉर्दर्न प्लेन है, तो उसका थर्ड पार्ट कौन सा हो जाएगा बच्चों? द थर्ड पार्ट विल बी ब्रह्मपुत्र प्लेन, ओके, ब्रह्मपुत्र प्लेन, एंड इट लाइज इन द असम पर्टिकुलरली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पॉइंट, द नॉर्दर्न प्लेन is the northern plains are generally described as the flat land with no variation in its relief.
ओके। इनके रिलीफ फीचर्स में कोई चेंजेस नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं मिलता, बिल्कुल फ्लैट लैंड है। एक जैसी भूमि पूरे आप वेस्ट बंगाल से लेकर के हरियाणा तक देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एलुवियल सॉइल का एक्सटेंशन मिलता है। किसी प्रकार की कोई रग्ड टोपोग्राफी नहीं मिलती है। ओके, कोई इरेगुलर टोपोग्राफी यहाँ पे नहीं मिलती। एक जैसे रिलीफ फीचर यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, now according to the variation in relief features, the northern plain can be divided into 4 regions. ओके, हाँ, इनकी अगर हम फर्टिलिटी की बात करें तो उनकी बेस पर इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इनके रिलीफ फीचर्स की अगर वेरिएशन की बात करें, वो कौन कौन सा होगा? पहला तेराई, ओके, फर्स्ट विल बी द तेराई, सेकेंड विल बी द भाबर, एंड थर्ड विल बी द Bangar, and fourth will be the Khadar. Okay, so in these 4 part the northern plain can be divided. Okay, Tarai regions, you know, the foothill area of the Himalaya is known as Tarai region. Bhabar refers to the swampy and wetland of the northern plain. It lies southwards to the Tarai. देखिए, सबसे पहले अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय हो गया, उसके जस्ट फुटहिल की एरिया जो होती है उसको हम तराई बोलते हैं। तराई के बाद से फिर भाबर लाई करता है, और भाबर के बाद से फिर ये बांगर, और फिर ये खादर का कॉन्सेप्ट राइज होता है। खादर एक्चुअली इट इज़ द फ्लड प्लेन। ओके, फ्लड प्लेन मीन्स द एरिया हैविंग द वाटर ऑफ द रिवर्स, जहाँ जहाँ तक रिवर्स का जो वाटर है वो पहुँच जाता है उसको हम खादर बोलते हैं। एंड बांगर इज़ द ओल्ड एलुवियम। ओके, सो लेट्स हैव ए लुक ओवर these points in details. The river, after descending from the mountain, deposit the pebbles in the narrow belt about 8 to 16 km in width, lying parallel to the slope of the Shivalik. ठीक है, सबसे पहले क्या बताया गया आपको? चलिए एक बार मैप पे मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। देखिए, ये नॉर्दर्न प्लेन है। अब नॉर्दर्न प्लेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने देखा ये हिमालय, कल हमने इसको पढ़ा था। हिमालय के बाद से जो ये जस्ट फुटहिल की एरिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं? जो भाबर बोलते हैं। भाबर, BHABAR। ओके, भाबर और बांगर में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये भाबर है, भाबर। ओके, बात समझ आ रही है? ये भाबर है। कहाँ पे लाई करता है ये? जस्ट बिलो द फुटहिल ऑफ द शिवालिक। ओके, कल हम लोगों ने पढ़ा था हिमालय की क्लासिफिकेशन में इनर हिमालय, लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालय। ओके, मीन्स ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। देन शिवालिक के बिलो जो होता है सबसे पहले क्या लाई करता है? ये भाबर हो गया। ओके, इन पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेबल्स मिलते हैं। पेबल्स मीन्स द स्टोन पीसेस, एंड रिवर्स यहाँ पे डिसअपीयर हो जाती हैं। रिवर्स क्या होती हैं? यहाँ पे डिसअपीयर हो जाती हैं, मतलब वो लुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, दिखती नहीं बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि इतने सारे पत्थर होते हैं, इनमें जो इनकी स्ट्रीम होती है बच्चों, वो जब भी ये मीन्स हिमालय से नीचे आ रही होती हैं तो फिर ये यहाँ पे डिसअपीयर हो जाती हैं। ओके, एंड देन आफ्टर द सेकेंड पार्ट लाइज बिलो द भाबर इज़ द तराई। इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है, पहला तो हम लोगों ने भाबर पढ़ लिया, जस्ट बिलो द फुटहिल ऑफ शिवालिक। देन आफ्टर द एरिया लाइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन इज कॉल्ड द तराई, इसको हम तराई बोलते हैं। ठीक है, ये एक स्वैम्पी और वेटलैंड होता है। क्या होता है? एक स्वैम्पी एंड वेटलैंड होता है। ठीक है, मार्सी लैंड होता है। स्वैम्पी का मतलब द सॉयल हैविंग मोस्ट पार्ट ऑफ द मॉइस्चर। ओके, यहाँ पे मतलब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, और ये वेटलैंड्स होते हैं। ठीक है, इनको हम तराई बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? तराई बोलते हैं। अब ये तराई हो गया आपका, पहला आपने भाबर पढ़ लिया। तो अब 2 पार्ट बचते हैं बच्चों, एक को हम लोग कांकर बोलते हैं, कांकर। ओके, या इनको हम बांगर भी बोलेंगे, अभी मैं इनके बारे में डिस्कस करूँगा, बांगर। और फिर एक ये खादर लाई करता है, KHADAR। ठीक है, खादर क्या होता है? आप जहाँ जहाँ पर ये रिवर्स देख रहे हो, यू आर सीइंग द रिवर्स फ्लोइंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, then you know at the rainy time this river flooded and extended over the large area. ओके, बारिश के टाइम पर क्या होता है? ये एक लार्ज एरिया तक एक्सटेंड कर जाते हैं, इनकी जो वाटर होता है वो लार्ज एरिया तक बढ़ जाता है। जहाँ तक इनका पानी एक्सटेंड करता है, वाटर जहाँ तक, फ्लड जहाँ तक एक्सटेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लड प्लेन बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लड प्लेन बोलते हैं। और ये जो फ्लड प्लेन्स होते हैं ये कंटिन्यूसली मीन्स यहाँ पर न्यू सॉयल डिपॉजिट हुए करते हैं। ओके, एंड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ न्यू सॉयल दे आर फर्टाइल इन नेचर। ओके, ये फर्टाइल इन नेचर हो रहे होते हैं। अब फर्टाइल इन नेचर होने की वजह से यहाँ पर जो क्रॉपिंग होती है वो बेटर होती है, इसलिए इनको हम खादर बोलते हैं। इनको हम न्यू एलुवियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम न्यू एलुवियम बोलते हैं। ओके,
चलिए, सो yes, the river after descending from the mountains deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 किलोमीटर इन विथ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक। ये मैंने आपको बता दिया, शिवालिक स्लोप के पैरेलल ही जो 8 to 16 km विथ की एरिया लाई करती है, वहाँ पे इनका पेबल्स का डिपोजिशन होता है और इस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, भावर। इट इज़ नोन एज भावर। सो यू हैव टू नोट दिस पॉइंट इन योर नोट्स। ओके, ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भावर बेल्ट। जितनी भी रिवर्स की स्ट्रीम होती हैं वो बिल्कुल गुम हो जाती हैं यहाँ पे। ओके, साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम एंड द रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट ए वेट स्वैम्पी एंड द मार्सी रीजन नोन एज तराई। ठीक है, और ठीक उसके नीचे यानी साउथ पार्ट में क्या होता है, फिर से रिवर इमर्ज करती हैं, फिर से वो अपीयर होती हैं और साथ साथ में वहाँ पे वेट स्वैम्पी एंड मार्सी लैंड ये क्रिएट करती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, तराई रीजन बोलते हैं। ओके, and the next part is that is the largest part of the northern plain. The largest part of the northern plain is formed of older alluvium. Okay, older alluvium refers to the place where the flood water of the river doesn't reach. ठीक है, ये वो प्लेस होता है जहाँ पर जो नदियों की बाढ़ का पानी होता है वो बिल्कुल पहुँचता नहीं है, उसको हम ओल्डर एलुवियम बोलते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बांगर। ठीक है, इनको हम बांगर भी बोलते हैं। ये लेस फर्टाइल होता है नेचर में। ओके, It lies above the floodplains of the rivers, present terrace-like features. This part is known as the बांगर। ठीक है, इनको हम बांगर भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, ये टेरेस लाइक फीचर क्रिएट करते हैं। ओके, टेरेस मीन्स एक रूफ टाइप का। ठीक है, और यहाँ पर कभी भी नदियों का पानी नहीं पहुँचता, इसलिए ये लेस फर्टाइल इन नेचर होते हैं। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलकरस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकर। ठीक है, और इस रीजन की जो भी सॉइल होती हैं वो क्या करती हैं, कैल्शियम डिपॉजिट्स कंपोज करती हैं। कैलकरस डिपॉजिट मीन्स कैल्शियम डिपॉजिट्स एंड लोकली नोन एज कंकर। इनको हम कंकर बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज में। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, कंकर बोलते हैं। ओके, द न्यूअर एंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। और जो न्यू डिपॉजिट होता है बच्चों, जहाँ तक फ्लडिंग पहुँच जाती है रिवर की, जहाँ तक फ्लड वाटर पहुँच जाता है, फ्लड पहुँच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। They are renewed almost every year and so fertile thus ideal and intensive for agriculture। ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि वहाँ पर हर साल जो नदियों का पानी है वो पहुँचता है, तो वो जिससे फर्टाइल इन नेचर हो जाते हैं और वो एग्रीकल्चर के लिए आइडियल होता है, बहुत अच्छा होता है। सो ऑल वाज दिस अबाउट द टुडे सेशन एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस टुमारो एंड इट विल बी द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन डिटेल्स। Till then you have to note all these major points that I have told you today, and you have to continue your studies tomorrow onwards. Thank you.